this video we will discuss reproduction and its modes. So let's start. Reproduction. What is reproduction? Reproduction is production of similar or almost similar living organisms. These living organisms can be called young ones or offsprings. किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे या अपने से मिलते जुलते न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इन ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स. रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, asexual, sexual. Asexual में mainly one parent is involved. Only one parent involved होगा. Sexual में two parents are involved. Asexual में gametes may be present or absent. With or without gametes हो सकता है, with or without gametes. While in sexual reproduction, gamete formation occurs. Asexual reproduction mostly followed by mostly unicellular, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें होता है. While sexual is mostly followed by higher organisms. So ये basic difference है between sexual and asexual reproduction में. So before starting further, let's first understand the term lifespan. What is lifespan? It is the time period from birth to death. Death is natural death. So lifespan is जो भी time period एक living organism birth से death तक survive करता है, that is called lifespan. Now it can be variable for varied organisms. Like for humans it can be 60 years, 70 years, 80 years. It is variable. Next, for flies, it can be only 1 or 2 days. And for bigger or higher plants, like banyan tree, it can be hundreds of years. So it is called lifespan. So next is asexual reproduction. Asexual reproduction अभी हमने discuss करा. It involves only one parent. One parent is involved. Gametes formation may or may not occur. So asexual reproduction अगर हम देखें तो जो भी organism या offspring produce होगा वो identical copy होगा पेरेंट का. ऑलमोस्ट कंप्लीटली सिमिलर, ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीटली सिमिलर होगा टू पेरेंट. कंप्लीटली सिमिलर में मॉर्फोलॉजिकली देखने में भी
और जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी, दोनों चीज़ें सिमिलर होंगी ऑफस्प्रिंग की टू द पेरेंट, एंड इट इज कॉल्ड क्लोन. Similar in morphology and in genetic composition. So, in asexual reproduction, offsprings are cloned to the parents. Next is vegetative propagation versus asexual reproduction. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बात करें प्लांट्स के रेफरेंस में, तो asexual reproduction को ही vegetative propagation हम बोल सकते हैं. अगर बात करें यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड या लोअर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज करेंगे, देन इट इज यूज्ड एसेक्सुअल. द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड. और प्लांट्स के केस में द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड. इन दोनों में यही डिफरेंस है, एसेक्सुअल वर्सेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब दे बोथ हैव डिफरेंट मोड्स. लेट्स फर्स्ट डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स हैं. First one is budding, binary fission, and multiple fission. Budding is shown by yeast and hydra. Suppose we have an hydra. इसमें यहाँ हाइड्रा की बॉडी में से एक छोटी सी बड निकलती है. दिस बड ग्रोज, धीरे धीरे बड़ी होगी और डिटैच होके यहाँ से डिटैच हो जाएगी, एंड इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट, न्यू हाइड्रा बॉडी. इट इज कॉल्ड बडिंग. बेसिकली इट इज कॉल्ड बड. इसमें क्या देखने को मिलता है? ईस्ट सेल होगी, उसमें भी एक छोटी सी बड निकलेगी, धीरे धीरे वो बड बड़ी होगी, देन इट विल डिटैच टू फॉर्म न्यू ईस्ट सेल. इट इज हाइड्रा. सो हमने देखा हाइड्रा और ईस्ट में क्या होते हैं, न्यू बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं. दीज बर्ड्स, न्यू बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं पेरेंट बॉडी पे. दीज बर्ड्स ग्रो इन साइज एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस. जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इंडिविजुअली टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग. इट इज कॉल्ड बडिंग. ये हमें देखने को मिलता है ईस्ट में प्लस हाइड्रा में. नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन. It is shown by amoeba. एक सिंगल अमीबा सेल होगी. It divides into two daughter cells. It is called binary. Binary fission, as the name suggests, binary means two. One single parent cell divides into one parent cell divides into two daughter cells. इसमें हम देखेंगे बाइनरी फिजन में होता है सेल डिवीजन. बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल डिवाइड हो गई टू में, सेल डिवीजन हो रहा है. सो और वन सेल कन्वर्ट हो गई टू में, तो ग्रोथ भी हो रही है प्लस रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. लिविंग वर्ड में एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग नंबर. ये वही चीज़ है, ग्रोथ भी प्लस रिप्रोडक्शन भी हुआ. ग्रोथ किसके थ्रू हुआ? बाय नंबर, बाय इंक्रीजिंग नंबर. वन सेल टू में कन्वर्ट हो गई. सो इट इज बाइनरी फिजन अमीबा. नेक्स्ट इज multiple fission. Multiple fission is also shown by amoeba under unfavorable conditions.
अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और बाइनरी फिशन कहाँ पे शो करता है अमीबा? अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ओके, देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं और अमीबा को लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सो इट सीक्रेट्स अ हार्ड कवरिंग अराउंड इट्स बॉडी। हार्ड कवरिंग सीक्रेट कर ली इसने। ये हार्ड कवरिंग कैसी होती है? थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग सीक्रेट करता है अमीबा अराउंड इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड द कंप्लीट बॉडी टू एस्केप, जिससे कि वो बच सके अनफेवरेबल कंडीशन से। एनसिस्टेशन अकर्स टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अमीबा डिवाइड्स विग्रसली। पहले क्या होता था फेवरेबल कंडीशंस में? अमीबा डिवाइड कर रहा था 1 to 2, 1 parent cell to 2 daughter cells, बट आफ्टर एंसेस्टेशन एक सेल से इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल छोटे छोटे मल्टीपल अमीबाज क्रिएट हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। minute amoebas are produced, और minute amoebas को इनको pseudopodiospores भी बोलते हैं। जब ये मल्टीपल अमीबास क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है? सिस्ट ब्रेक्स, स्पोर्स आर लिबरेटेड, pseudopodiospores are liberated, and new individual amoebas are formed. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। ओके, so this is multiple fission in amoeba. So amoeba shows multiple fission plus binary fission. Next है हमारा asexual reproductive structures. इसमें कौन कौन से structures हैं? Zoospores that are found in Chlamydomonas, that is green algae. Motile structures होते हैं। Next is Conidia, पेनिसिलियम में, फंजाई में। These are minute spores that are produced on stalks, conidiospores. ये सब आपको याद ही करना। Basically you have to remember the structures and their examples, किसमें में मिलते हैं। बट हमने अभी देखा हाइड्रा में प्लस ईस्ट में मिलता है। गैम्यूल्स आर फाउंड इन स्पॉन्जेस, दैट इज पॉरीफेरा। ये अब जब आप फाइलम्स पढ़ोगे तब उसमें डिटेल में पढ़ोगे पॉरीफेरा में। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि प्लांट्स में है, उनमें क्या क्या मोड्स हो सकते हैं? इट कैन बी रनर, ग्रास में, मिली ग्रास में क्या होगा, जो एक सिंगल ग्राउंड के पास की स्टेम होगी वो नीचे स्क्रॉल करके दूसरी जगह थोड़े डिस्टेंस पे रूट्स क्रिएट करेगी और एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगी। इट इज कॉल्ड रनर। राइजोम्स आर फाउंड इन जिंजर एंड बनाना। इट इज ऑल्सो इन स्टेम मॉडिफिकेशन। Suckers are found in chrysanthemum and banana. Tubers are found in potato. Potato में आपने देखा होगा एक छोटे छोटे वाइट जो पुराना आलू हो जाते हैं उसमें ऐसे बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। These are also called eyes. पोटैटो को जो प्लांट पोटैटो
जो पार्ट है बेसिकली इट इज कॉल्ड ट्यूबर, क्योंकि इट्स एन अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। और ट्यूबर्स पे वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है उनको हम बोलते हैं आइस या फिर बर्ड्स। वाटर हाइसिंथ में मिलता है ऑफसेट, इट इज ऑल्सो सिमिलर। वाटर हाइसिंथ बेसिकली पानी में होगा, इसमें एक नीचे ब्रांच एक्स्ट्रा क्रिएट होगी और ये दूसरी जगह पे जाके न्यू प्लांट को जनरेट करेगी। वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इस प्लांट को बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया था फॉर इट्स ब्यूटिफिकेशन। उसके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बट इट इज नाउ अ हॉरर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल जाता है एनिमल वो वाटर बॉडीज में कि ऑक्सीजन और सनलाइट की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है फॉर अदर स्मॉल फिशेस। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, सो इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज बल्ब। आपने अनियन देखा है, अनियन में, लिली में, दैट इज कॉल्ड बल्ब। इनसे भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, सो इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लीफ बर्ड्स हमें मिलते हैं ब्रायोफाइलम में, जैसे कि सिंपल लीफ होगी, उस पे मार्जिन्स पे बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं लीफ बर्ड्स। और एडवेंटिशियस बर्ड्स भी बोलते हैं। ये किस में मिलती है? ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन हाइड्रा। एक हाइड्रा बॉडी है, इट डिवाइड्स। ये मान लो किसी भी कंडीशन की वजह से ब्रेक हो जाती है यहाँ से, और वी कैन से 2 पार्ट्स में, 2 जगह से ब्रेक हो जाती है। तो ये तीनों पार्ट, ऊपर वाला, मिडिल वाला और लास्ट वाला, तीनों रीजनरेट होके न्यू हाइड्रा बॉडी बना सकते हैं। इसमें नीचे और ऊपर दोनों जगह ग्रोथ हो जाएगी, इसमें नीचे ग्रोथ हो जाएगी और इसमें ऊपर की साइड ग्रोथ हो जाएगी। So these 3 hydra will form from one individual parent. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Fragmentation. And 3 offsprings or new individuals are created. It is called fragmentation. So hydra में हमने क्या क्या देखा? hydra में budding भी हो रही थी प्लस फ्रेगमेंटेशन। इस चैप्टर में बेसिकली आपको याद ये रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।